Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. We are come with another question. Look at the question. What do you understand by the continental drift theory? Discuss along with the evidence that supports the theory. कह रहा है whenever you are try to approach the question, what are the right approach? क्या right approach है वो देखें. तो firstly we are finding out the tail word in the question. Tail word find out करना है. Then second क्या है? Primary keyword find out करना है. And third again there is a secondary keyword if the question have. क्वेश्चन में है तो कह रहा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. तो पहला टेल वर्ड क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय. ठीक. सेकेंड टेल वर्ड क्या है? डिस्कस. डिस्कस. डिस्कस का मतलब क्या होता है? जस्ट सिंप्लीफाई द थिंग्स. डिस्कस अलोंग द एविडेंसेस दैट सपोज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. तो पहले मैं क्या बताना था कि कॉन्टिनेंटल CDT थ्योरी क्या है, और कह रहा है अलोंग विथ एविडेंसेस विच सपोर्ट्स दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. तो सेकंड में बताना है आपको एविडेंस. ठीक. तो देखो क्वेश्चन को अप्रोच करते समय हमने तीन चीजें देख ली. फर्स्टली वी फाइंड आउट टेल वर्ड. Second, primary keyword, continental drift theory. What is continental drift theory? And the secondary keyword is providing the evidence which are favoring the continental drift theory. Okay. Now we are begin with the continental drift theory. So continental drift theory में भाई what is the approach? Firstly, you have to write down your intro and it should be within 20 to 30 words. और मैक्सिमम यू हैव टू रीच एटलीस्ट 35 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते. ठीक. तो अब हमें देखना है कि भाई इंट्रो इसका कैसे लिखें. व्हाट आर दी बेस्ट वे. इंट्रो का मतलब क्या होता है कि इंट्रो इंक्लूड्स ऑल द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू एटलीस्ट मेंशन. तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इटसेल्फ talks about continental drift theory is propounded by. तो सबसे पहले आपको क्या बताना है इसमें कि continental drift theory is propounded by German meteorologist Alfred Wegener. Somebody is called Wegener in 1912. In 1912 in his book the continental drift theory. कह रहा है before the Wegener, you have to mention before the Wegener the major belief of the peoples is the continents are immobile. Continents are immobile. Continents are immobile in nature. So it is the revolutionary theory which talks about the movability, which talks about the dynamism of the continents, and this is the first theory which talks about continents and oceans are not static, it is movable. But Alfred Wegener only talks about the continental drift. Continental drift. Okay. Now in the main body of the answer में क्या लिखना है कि भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए इन्होंने क्या क्या बताया. तो इन द मेन बॉडी ऑफ द आंसर में यू हैव टू मेंशन 3-4 things. Firstly, you have to mention around 250 million years ago, Alfred Wegener assumed all the continental masses are joined together and they are collectively called Pangea. You have to mention Pangea. Pan, it means entire. You have to mention these because these type of intro or these type of things, small things, give a great impact on the examiner's eyesight. Gea, it means continents, and the mid part is the shallow sea, which is known as Tethys.
geosyncline. Tethys geosyncline. The northern part of Pangaea is known as Laurasia, and the southern part of Pangaea is known as Gondwana land. You have to mention. So क्या पता चला हमें? Around 250 million years ago, all the landmass is joined together and collectively called Pangaea, and around 200 million years. अब second point में around 200 million years ago, Pangaea start splitting and drifting apart from each other, and it breaks down, and Pangaea breaks down. The northern part is known as Laurasia and the southern part is known as Gondwana land. Subsequently, the northern part of Laurasia again divides into three parts. One is North America, second one is Greenland, and third one is Europe. And Gondwana land is also dividing. Gondwana land is also dividing into five parts. One is South America, one is Africa, one is India, one is Australia, one is Antarctica. So you have to mention these, and you have to mention the force which are suggested by Wegener. You have to mention the force which are suggested by Wegener. The first force is polar flight force. Just you have to simply mention. And second one is the tidal force. Okay. Next, and the next part of question demands the second part of body of the answer, demands the evidences, because Wegener's theory is all about the evidences, how the Wegener is proposing all the evidences. तो एविडेंस में आपको क्या क्या लिखना है भाई? एविडेंस अगेन आपको एक ग्राफ बनाना है, और ग्राफ जितना अच्छा होगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा. तो पहला क्या है भाई? इसमें पहले आप बना सकते हो जिग सॉ फिट. ये जर्मन वर्ड है जिग सॉ फिट, जिसका मतलब होता है रिमार्केबल मैचिंग ऑफ द शोर लाइन. जिग सॉ फिट मतलब रिमार्केबल मैच हो रहा था शोर लाइन ऑफ द साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका. ठीक, तो यहां पर छोटा सा आप यहां पे एक फिगर भी मेंशन कर सकते हो. आपने ऐसे बना दिया. लेट मी अगेन मेंशन द फिगर. आप यहीं पे एक फिगर में मेंशन कर दो, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि आप जो हैं बिल्कुल सही आदमी हैं हमारे लिए. ठीक, ये जिगसॉ फिट यहीं पे बता दिया आपने. जिगसॉ फिट, रिमार्केबल मैचिंग. सेकंड पॉइंट आप क्या बता सकते हो? यहाँ पे यहाँ पर आप रेडियो मेट्रिक डेटिंग ऑफ द रॉक्स. रेडियोमेट्रिक डेटिंग ऑफ द रॉक्स ऑफ Appalachian माउंटेन. Appalachian माउंटेन. तो ये इसके एविडेंसेस हमें कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? दो जगह, यूएसए एंड अल्जीरिया. थर्ड एविडेंस आप क्या बता सकते हो? फॉसिल बेस्ड एविडेंसेस. फॉसिल एविडेंसेस में हमें इसे पैलियो बॉटनिक और जूलॉजिक दोनों कहते हैं. तो फॉसिल एविडेंसेस में सबसे पहले हम कोल बेस्ड एविडेंसेस हैं. कोल बेस्ड एविडेंसेस में क्या है भाई? नॉर्थ पार्ट ऑफ या नॉर्वे, नॉर्थ पार्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड में. यहीं पर आप ये भी बता सकते हो कि इक्वेटोरियल रीजन में क्या मिल रहा था? ग्लेशियल डिपॉजिट्स थे. ग्लेशियल
डिपॉजिट्स। अब यहाँ पे तो आपने फॉसिल का एविडेंस बता दिया। फॉसिल में नॉर्थ पार्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में आपको कोल मिल रहा है, ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिल रहे हैं इक्वेटोरियल रीजन में। अगर आपको थोड़ा सेपरेटली मेंशन करना है तो यहाँ पे इसी ग्लेशियल डिपॉजिट में हम तालचेर, तालचेर इन उड़ीसा, ओडिशा, हमें ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिले। ठीक, और इसी ग्लेशियल डिपॉजिट्स को हम लोग टिलाइट रॉक्स भी बोलते हैं ना, टिलाइट रॉक्स। तो ये एक एविडेंस हो गया। थर्ड एविडेंस क्या हो सकता है भाई? हम नेक्स्ट एविडेंस क्या देख सकते हैं यहाँ पे? अगर मान लो हमें एक नेक्स्ट एविडेंस देखना हो तो हम यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड डिपॉजिट्स, गोल्ड डिपॉजिट्स, गोल्ड डिपॉजिट्स also provide the insights of the continental drift theory because gold deposits जो हैं घाना कोस्ट जो है, जिसे गोल्ड कोस्ट बोलते हैं, घाना कोस्ट, कोस्ट ऑफ घाना पे हमें क्या मिल रहा था? गोल्ड वेन्स मिल रही थी, गोल्ड वेन्स। we found the gold veins but the main source of rock is absent, source of rock is found in ब्राजील, ब्राजील में मिल रहा था। तो ये आप बता सकते हो। नेक्स्ट एविडेंस आप क्या बता सकते हैं इसमें? नेक्स्ट एविडेंस में हम लोग एक चीज और ले सकते हैं यहाँ पे, पैलियो मैग्नेटिज्म, पैलियो मैग्नेटिज्म, पैलियो मैग्नेटिज्म। ये भी एक एविडेंस है जो बताता है कि कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग बिकॉज हमने क्या देखा कि जैसे जैसे प्लेट मूव हो रहा है तो ओल्डर रॉक्स जो हैं, ओल्डर रॉक्स का मैग्नेटिक पोल जो है अलग अलग दिखा रहा था। जब हमने मैग्नेटिक इस ओल्डर रॉक को पीछे बैक किया तो इसका मैग्नेटिक पोल जो आज का, आज प्रेजेंट डे में जो मैग्नेटिक पोल है उसकी तरफ दिखा रहा था। पैलियो मैग्नेटिक, पैलियो जूलॉजिक एविडेंसेस में कुछ कुछ आप एविडेंसेस जैसे डाल सकते हैं। जैसे कौन से एविडेंस आप डाल सकते हो? तो जैसे कुछ कुछ पैलियो जूलॉजिक, पैलियो जूलॉजिक एविडेंसेस यू हैव टू मेंशन पैलियोजूलॉजिकल, पैलियोजूलॉजिकल एविडेंसेस। तो उसमें क्या है? पहला मीजोसॉरस, मीजोसॉरस, ये इट इज 1 मीटर रेप्टाइल, ओशनिक रेप्टाइल है। और मीजोसॉरस के एविडेंसेस हमें कहाँ कहाँ मिल रहे थे? मीजोसॉरस के एविडेंसेस इन अफ्रीका एज वेल एज इन यू कैन से दैट साउथ अमेरिका, नॉट अर्जेंटीना एंड ब्राजील। ठीक, सेकेंड और एविडेंसेस में यहाँ आप क्या दे सकते हो? इसके अलावा मीजोसॉरस के अलावा साइनोगैंथस, साइनोगैंथस, साइनोगैंथस। और एविडेंस में थर्ड क्या दे सकते हैं हम लोग? लेमिंग, लेमिंग्स विच आर फाउंड इन, विच आर फाउंड, ओके रुक जाए एक मिनट। लेमिंग्स आर फाउंड इन नॉर्वे, स्वीडन, लेमिंग्स आर फाउंड इन नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ थे। तो इनको हमने देखा लेमिंग्स का एविडेंस कि लेमिंग्स जो हैं वो अभी भी वेस्टवर्ड मूव करते हैं। तो ये भी एक एविडेंस था। फोर्थ एविडेंस क्या डाल सकते हैं हम लोग इसी में? हम लोग एक तरीके से लैमूर, लैमूर which are found in Africa, which are found in India, which are found in Madagascar, Madagascar। अच्छा, एक और चीज इसमें हम लोग कर सकते हैं, पैलियो बॉटनिक भी दे सकते हैं, जैसे ग्लासो पिटारिस फर्न है which are found in अंटार्कटिका एंड इंडिया एज वेल। तो दीज आर द एविडेंसेस। इतने सारे एविडेंसेस हैं यू हैव टू मेंशन। और भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं बट देर इज अ वर्ड लिमिट सो वी कैन नॉट मूव फर्दर, वी कैन नॉट एक्सटेंड द लिमिट्स ऑफ द क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद इन कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं भाई? कंक्लूजन में हमें लिखना है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी
despite of the continental drift theory is irrelevant. Yeah, you can say that the relevancy, because the force which are proposed by Wegener is inappropriate to the continental drift. जो फोर्स वेगनर ने दिया था वो इनएप्रोप्रिएट था, इनएडिक्वेट था, जो कि कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करा पाता. तो इसमें लिखना है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज मेकिंग a strong foundation for the upcoming theories like sea floor spreading theory, plate tectonic theory, as well as neo plate tectonism, and it will provide the deep insight about the continents drifting. Okay, ये सब कर सकते हैं, ठीक. And you can also mention that the plate tectonic is more advocating the evidences than its postulation. Okay, now ये सारा आपको लिखना था और ये इस तरह से आपको मेंशन करना था. चलें आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.